Assalamu alaikum friends. Today we are going to discuss labor and factory overhead, the last two cost elements of the product. We know that basically in a single product there are three cost elements: direct material, direct labor, and factory overheads. And we already have discussed in the previous lectures that the combination of direct material consumed and direct labor cost is termed as prime cost, while direct labor cost plus FOH is termed as conversion cost. Now, if you see what is the difference between salaries and wages, salaries is basically is a fixed remuneration that is being paid to the employee at the end of an accounting period or at the end of a month. Salaries are usually paid at the month end on the month ending basis, and that is they are usually fixed. These are the fixed amounts. It means the gross pay, the net pay is almost fixed now. While if in comparison, the wages are not a fixed remuneration because it keeps on changing. Like wages are basically the amounts which are paid to the operational staff on two bases. Like usually two bases are used to calculate these wages. These are labor hours spent in the factory and the units produced basis, or what we call piece rate basis. Wages, they are usually offered to the operational staff, and the salaries are usually offered to the white collar jobs, like at the managerial section. जो managers होते हैं आपको उनको salaries ऑफर की जाती हैं, जो above grades होते हैं, जो आपके शुरू के आपको उनके जो scales होते हैं उनमें ज़्यादातर wages पे की जाती हैं. Like wages में आर्ली वेज रेट क्या होता है कि बेसिकली आप आवर्स कैलकुलेट करते हैं कि एक एम्प्लॉई ने, जो आपका ऑपरेशनल स्टाफ है जो ज़्यादातर फैक्ट्री सेटिंग्स में काम कर रहे होते हैं, उन्होंने कितने घंटे स्पेंड किए हैं फैक्ट्री में. तो अगर उनका एक घंटे का रेट 10 रुपीज़ पर आवर है और उन्होंने पूरे महीने में 300 घंटे फैक्ट्री में काम किया है, तो आप 300 × 10 उनको वेज कैलकुलेट कर लेते हैं. डेफिनेटली वो वेज आपकी फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है, क्योंकि कभी लेबर ने ज़्यादा काम किया, कभी लेबर ने कम काम किया, किसी दिन वो छुट्टी पे चला गया, तो उसकी वेज ऊपर नीचे होती रहती है. दैट इज़ नॉट अ फिक्स्ड रेमुनरेशन. और पीस रेट या यूनिट रेट बेस की होती है कि आप पर पीस रेट डिसाइड कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल एक एग्जाम्पलिंग यूनिट में काम कर रहा है और वो 10 यूनिट एग्जाम्पल करेगा, तो एक यूनिट एग्जाम्पल करने का आप रेट डिसाइड कर लेते हैं. लाइक 50 रुपीज़ उसको मिल रहा है, तो अगर उसने 10 यूनिट एग्जाम्पल किए हैं तो 50 × 10 500 उसकी वेज बनती है. तो ज़्यादातर जो वेजेस होती हैं, दे आर यूजली पेड on weekly basis or bi-weekly basis or month ending basis. तो it depends according to the factory जो आपकी administration, that how they have decided to pay on weekly basis or bi-weekly basis or monthly basis. अपना अपना हर ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होता है. लाइक यूजली आवर्स एज बेस यूज़ हो रहे होते हैं फैक्ट्री सेटिंग्स में. और जैसे आपका कारपेंटर है, जैसे जहाँ पर आप लोगों के सोफे वगैरह और ये ऐसी चीज़ें बन रही हैं, वहाँ ज़्यादातर पीस रेट सिस्टम वर्कआउट कर रहा होता है. Now we already know what is direct labor cost. Direct labor cost is basically the cost that is economically and conveniently traceable in a single product. That is direct cost, and the cost of the labor that cannot be conveniently or economically traced out in a single product is termed as indirect labor. Now, the need of the hour is to calculate the hours spent by the एम्प्लॉई इन द फैक्ट्री. बिकॉज रेट तो ऑलरेडी डिटर्मिन हो चुका होता है. कंपनी का रेट सबके लिए स्टैंडर्ड होता है. रेट पर आवर या पीस रेट जो होता है वो ऑलरेडी सेट होता है. सो बेसिकली इन वेज अर्नर्स की वेज को कैलकुलेट करने के लिए आपके लिए बेसिक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है लेबर कॉस्ट में, वो ये होता है कि आप इनका टाइम कैलकुलेट करें कि इन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है फैक्ट्री सेटिंग्स में. उसके लिए आपके पास मल्टीपल टूल्स होते हैं. लाइक कुछ मैनुअल रिकॉर्डिंग्स होती हैं, कुछ स्मार्ट कार्ड्स होते हैं, कुछ क्लॉक कार्ड्स होते हैं, कहीं पर थंब इम्प्रेशंस होते हैं, बायोमेट्रिक होता है कहीं पर कि आप थंब इम्प्रेशन देते हैं, आपका टाइम इन रिकॉर्ड हो जाता है, और जब आप फैक्ट्री सेटिंग से निकल रहे होते हैं तो आप दोबारा से थंब प्रिंट देते हैं ताकि पता चल जाता है कि आप टाइम आउट हो गया आपका. फिर वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है कि कितने आवर्स आपने काम किया है, ओवर टाइम कितना है, और बेसिक आपने वर्क कितना परफॉर्म किया है. लेकिन कुछ जगहों पर मैनुअल रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं. मैनुअल रिकॉर्डिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका शिफ्ट इंचार्ज. और शिफ्ट इंचार्ज बेसिकली 8-8 घंटों की शिफ्ट्स होती हैं, जो अगर आपने प्रोडक्शन प्लांट्स कभी विजिट किए हो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही हो जिन फर्म्स में,
तो समटाइम्स 24 आवर्स आपका प्लांट वर्कआउट कर रहा होता है, तो 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में काम हो रहा होता है। तो हर शिफ्ट का इंचार्ज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अपनी शिफ्ट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़, उनकी तादाद और उनके आवर्स स्पेंड को कैलकुलेट करें। सो बेसिकली अगर एक मैनुअल रजिस्टर हो तो ये कुछ इस किस्म का दिखता है कि डेट, नेम ऑफ एम्प्लॉय, टाइमिंग, कितने बजे वो आया, 8 बजे आया, 2 बजे गया, 6 घंटे उसने काम किया, आपने सिग्नेचर कर दिए दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल कि हाँ वाकई इसने इतने घंटे काम किया। Similarly, the timesheet shows the proper record that how much a time a person has spent in the factory settings. And similarly, job sheets look like this, like hours spent मल्टीप्लाई पे जो आप जितने आवर्स उन्होंने स्पेंड किए, लाइक 8 से 2 उन्होंने 6 घंटे काम किया है, तो उनका वेज रेट यहाँ पे गिवन होता है कि पर आवर वेज रेट कितना था, मल्टीप्लाई कर दें, उसके पास आपके पास लेबर कॉस्ट आ जाती है कि, और लेबर कॉस्ट एक लेबर की निकली, इसी तरह बाकी लेबर्स की भी कैलकुलेट करके पे रोल्स डेवलप कर लेते हैं। Now this is basically the salary slip, the section of the salary slip. बेसिकली सैलरी स्लिप्स में ये होता है कि हम ग्रॉस पे बेसिकली वो पे होती है जो एक्चुअली आप वट एवर यू हैव अर्नड, लाइक उसमें से डिडक्शंस होने के बाद वो पे बनती है जिसे हम नेट पे कहते हैं। नेट पे बेसिकली हम टेक होम पे भी कहते हैं कि ये वो पे होती है जो एक्चुअली आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाती हैं। जो आप अर्न करते हैं वो कभी भी आपको दिया नहीं जाता, उसमें से कुछ डिडक्शन होने के बाद ही वो अमाउंट बनती है जो आपको अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है या आपको बाय हैंड दी जाती है। Now, what is gross pay? Gross pay basically is a combination of basic pay, whatever is being granted, like in a government sector, जो भी आपका स्केल होगा उस स्केल के हिसाब से आपकी बेसिक पे होगी। उसमें इन केस इफ़ यू हैव एनी, क्योंकि अब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लेबर से रिलेटेड हैं कि उसमें उनको बोनस भी मिलता है। बोनस बेसिकली इज अवॉर्डेड फॉर गुड परफॉर्मेंस। Overtime payments, sometimes we laborers are being called like to work on extra hours uh, in comparison to normal hours, like उसका फिर रेट ज़्यादा होता है, लाइक ओवर टाइम पेमेंट ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सैटरडे या संडे को कॉल कर लिया जाए किसी भी वजह से, या अगर आपको कोई ऑर्डर ऐसा आ गया है कि आपको ज़्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, तो फिर डेफिनेटली लेबर रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस दोज यूनिट्स। तो अगर आपकी लेबर ज़्यादा घंटे काम कर रही है तो उनका आप ओवर टाइम पेमेंट्स करेंगे, और सैटरडे संडे या वीकेंड्स के जो रेट्स होते हैं वो यूजली नॉर्मल वेज रेट से डबल रेट्स होते हैं। या अगर आप 8 से 4 आप बाउंड हैं किसी जगह पे काम करने के और 4 बजे के बाद आपको काम करना पड़ रहा है, तो फिर भी वो ओवर टाइम पेमेंट्स कहलाती हैं। सिमिलरली द शिफ्ट अलाउंस इज बीइंग गिवन टू द एम्प्लॉयज़, ये जो आपका वेज अर्नर्स होते हैं। अदर अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रेंट अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, ये डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं जिन सबको ऐड ऑन करके आपकी ग्रॉस पे बनती है। लाइक ग्रॉस पे में से फिर हम उसमें से कुछ डिडक्शंस करते हैं। यही आपकी सैलरी स्लिप का कुछ आपको स्ट्रक्चर ऐसा नज़र आ रहा होगा कि सैलरी स्लिप्स मंथ एंडिंग्स पर आपको ऐसे मिलती हैं कि आप बेसिक पे में तमाम जो आपकी अदर इनकम्स होती हैं, बोनस, ओवर टाइम, अदर अलाउंसेस, इन सबको ऐड ऑन कर दें तो आपके पास ग्रॉस पे बन जाती है। जो आपकी डिडक्शंस हैं, दीज डिडक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, like statutory deductions or non-statutory deductions. Statutory deductions basically those are those deductions that are made by law, like जो आपका कानून, आपका चार्टर कह रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम टैक्स कह दें, टैक्स आपका बेसिकली ऐसी डिडक्शन है दैट इज़ मेड बाय लॉ, तो इसको हम स्टैट्यूटरी डिडक्शन कहते हैं। इट मीन्स कि वट एवर इज़ बींग अर्न बाई यू इज़ सब्जेक्टेबल टू टैक्स। अगर आपने 10 रुपये भी कमाए हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें टैक्स पे करेंगे। तो लेट्स सी आप किस ब्रैकेट में फॉल करते हैं, आप फाइलर हैं, आप नॉन फाइलर हैं, उस हिसाब से आपके पे के ऊपर आपका टैक्स डिडक्ट होता है। नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस वो डिडक्शंस होती हैं जो एम्प्लॉई अपनी मर्ज़ी से उसमें उसमें इंटरवेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने कोई ग्रुप इंश्योरेंस, पेंशन या कुछ आपने कोई चीज़ें ज्वाइन की हुई हैं, उसके लिए आपको पेमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कन्वेंस ली हुई है, कन्वेंस की फैसिलिटी मैं यूनिवर्सिटी की यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा कन्वेंस की डिडक्शन होगी, लाइक अगर इफ़ आई एम यूजिंग कोस्टर। और अगर मैं नहीं यूज़ कर रही तो डेफिनेटली उसकी डिडक्शन नहीं होगी। और सिमिलरली अगर मैं कोई हॉस्टल यूज़ कर रही हूँ, हॉस्टल में मेरी अकोमोडेशन है, या अगर मैं कोई मेस यूज़ कर रही हूँ, तो उसकी डिडक्शन जो होगी वो यहाँ पर आएगी। और अगर मैं नहीं यूज़ करी, वो एम्प्लॉय विल पर होती है कि वो ये फैसिलिटीज़ ले या ना ले। तो जो फैसिलिटीज़ आप लेते हैं उनकी डिडक्शन होती है, जो फैसिलिटीज़ आप नहीं इंजॉय कर रहे हो तो डेफिनेटली वो स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी डिडक्शंस में आती हैं। कटिंग होने के बाद जो पे बचती है दैट इज़ व्हाट वी कॉल
नेट पे इज ऑल्सो टर्म्ड एज टेक होम पे, मतलब ये वो पे होती है जो हमारे अकाउंट्स में क्रेडिट हो रही होती है। नाउ डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड बेसिकली 2 to 3 एंट्रीज होती हैं। बेसिकली ये देख लीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली सबसे पहले एंट्री जो होती है वो पे रोल को प्रिपेयर करने की होती है। टोटल द पे रोल एक्सपेंस, द वेजेस एंड द सैलरीज एक्सपेंस, जिसको आप लिख रहे होते हैं अक्सर जब आप एंट्रीज करते हैं, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंसेस, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100। लेट्स से कि सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंसेस आर डेबिटेड बिकॉज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड एज डेबिट। नाउ जो भी डिडक्शन होती है दैट इज लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस इनकम टैक्स है, तो हम कहते हैं इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट, और पे रोल पेएबल कि अब इम्प्लॉय को टेकन होम पे उनकी कितनी है 95 रुपीज़, तो दैट इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। नाउ इंक्रीज इन लाइबिलिटी अब क्रिएट हो गई है, नाउ यू विल पे ऑफ इट बाय, यू विल basically whenever you will pay to the employees, this liability will be reduced, right? So this is salaries and wages expense debit, income tax payable credit, salaries payable credit. Now payroll distribution means कि ये जो 100 रुपीज़ है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, कि ये जो 100 रुपया सैलरीज और वेजेस के मद में देना है किस किस को देना है और किस किस डिपार्टमेंट से लोग बिलोंग करते हैं। सो जो वर्क इन प्रोसेस, बेसिकली डायरेक्ट लेबर जो होती है दैट इज़ द पार्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। इनडायरेक्ट लेबर विल बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इट मीन्स अगर कोई एडमिन डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है उसकी जो सैलरीज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाएगी, और सेलिंग और मार्केटिंग स्टाफ की जो सैलरी है वो सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस में आएगी। तो वी जस्ट ऐड दम ऑन 20 + 30 + 40 + 10, टोटल हो गया आपका सैलरीज एंड वेज एक्सपेंसेस इक्वल टू 100। ना अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर का आपको पता है कि डायरेक्ट लेबर वो होती है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही होती है, और इनडायरेक्ट लेबर जो होती है वो लेबर होती है जिस जैसे जैनिटर्स, जैसे स्टाफ होते हैं आपके, क्लीनिंग स्टाफ जो होता है, मतलब वो किसी भी प्रोडक्ट में आप उसकी कॉस्ट को इजीली और कन्वीनियंटली ट्रेस आउट नहीं कर सकते, बट स्टिल वो फैक्ट्री सेटिंग्स में काम कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट लेबर। ना लास्ट एंट्री होती है स्टूडेंट्स, ये जो सैलरीज पेबल होती हैं या अक्रूड सैलरीज होती हैं इनको आप पे ऑफ कर दें। तो अक्रूड सैलरीज जो होती हैं आपकी, या सैलरीज पेबल जो आप डेबिट कर देते हैं और कैश क्रेडिट कर दिया या बैंक क्रेडिट कर दिया, तो इट मीन्स ये अमाउंट्स हमने उनको क्रेडिट कर दी हैं। Now this is an exercise question where you need to prepare, I think, certain entries. Like in this exercise question, the direct labor cost is 15,000, indirect labor cost is 10,000, sales salaries expenses given as 7,000, administrative salaries are 8,000. The total cost is 40,000 in terms of labor. डिडक्शंस हैं दो, इनकम टैक्स और ग्रुप इंश्योरेंस की। सबसे पहले पेरोल प्रिपरेशन की एंट्री देख लेते हैं। पेरोल्स बन रही हैं स्टूडेंट्स, टोटल अमाउंट जो एक्चुअली अर्न किया दैट इज़ 40,000, उस 40,000 में से जो रिडक्शंस हैं वो माइनस कर दें। इनकम टैक्स पेएबल्स, ग्रुप इंश्योरेंस पेएबल क्रेडिट कर देंगे, और रिमेनिंग अमाउंट क्या बनेगी, 40,000 में से ये 5,000 माइनस कर दें, इट मीन्स 35,000 वो पे है जो कंपनी की लाइबिलिटी है क्या वो लेबर को पे करेगी। सो पे रोल पेएबल या सैलरीज और वेजेस पेएबल्स आर क्रेडिट टू $35,000 or rupees, whatever the currency is. Secondly, when we make a payment, so the payroll payable to cash आप कर लें डायरेक्टली, इन्होंने अब दो दो एंट्रीज की हुई हैं, आप डायरेक्टली इसको पेरोल पेएबल टू कैश कर दें, बजाय इसके कि आप वॉचर पेएबल बनाएं, फिर वॉचर बनाने के बाद आप बैंक के थ्रू उनको काम करें, आप डायरेक्टली उनको पेरोल जो आपकी पेरोल पेएबल्स हैं इनटू कैश करके पे ऑफ कर दें। ये डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है कि ये जो 40,000 बनता है ये किस किस से बिलोंग करता है। तो उन्होंने आपको बताया था कि 40,000 जो डायरेक्ट लेबर है वो आप डाल दें वर्किंग प्रोसेस में, जो इनडायरेक्ट लेबर है वो आप डाल दें फैक्ट्री ओवरहेड्स में, जो सेलिंग और मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो बाय नेम ही आएंगे। लेकिन बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के लिए आप लोगों ने डिफरेंट अकाउंट्स यूज़ करने हैं। डायरेक्ट लेबर आपने डालनी है वर्किंग प्रोसेस में, और इनडायरेक्ट लेबर डालनी है आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स में। हम लोगों ने जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट में भी ऐसे ही किया था, तो होप यू रिमाइंड कि हम लोगों ने कैसे एंट्रीज पास की थी। Now this is a simple picture of a payslip. Like your name is being written, your designation, your company name, like IUB scale is given. The gross pay. This is your gross pay. These are the allowances. These are the deductions, and then net pay is given. This is basically a payroll slip. And then we have payroll incentives. What are the different amounts that are add on in our gross pay? These can be commission. Commission is basically
usually given to the Salesforce staff to encourage them, to motivate them to sell more and more. The shift allowance, the overtime payments, and the bonuses are usually given to the people who are related to production or who are working in the factory settings. This is one of the example of a commission, like salary. The basic pay is given like 5,000 रुपीज़. आपका पर पीस कमीशन है आपका 10. आपने यूनिट सोल्ड कितने की हैं 700, तो आप कमीशन इसका कैलकुलेट कर लें. 700 पीसेस सेल आउट की हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एक पीस पे कमीशन कितना था 10. तो 700 × 10 7,000 हो गया. तो आपकी जब टोटल सैलरी ग्रॉस पे बन रही होगी तो उसमें हम आपकी इस बेसिक पे में इस कमीशन को ऐड ऑन कर लेंगे, तो आपकी बेसिक पे बन जाएगी, सॉरी आपकी ग्रॉस पे बन जाएगी 13,000 इन दिस पर्टिकुलर केस. शिफ्ट अनाउंसमेंट्स बेसिकली प्रोडक्शन या जो शिफ्ट्स में काम कर रहे होते हैं, जो आपका ऑपरेशनल स्टाफ होता है जो डायरेक्टली लेबर के ऊपर प्रोडक्शन में काम कर रहा होता है, उनको दिया जाता है. लाइक इसमें 3 शिफ्ट्स में काम हो रहा है इस प्रोडक्शन हाउस में. जैसे आपका कोका कोला के प्लांट्स हैं, आपके प्रॉक्टर एंड गैमल है, यूनिलीवर है, ये तमाम फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो 24 आवर्स काम करती हैं. इट मीन्स 24 आवर्स प्रोडक्शन हो रही होती है इनके यहाँ. तो शिफ्ट्स आपकी सुबह 6 से लेकर दोपहर 2 बजे तक की शिफ्ट होती है. 8-8 घंटे की शिफ्ट है. दोपहर 2 बजे से लेकर रात 10 बजे की शिफ्ट है. रात 10 बजे से लेकर सुबह अगेन 6 बजे तक की शिफ्ट है. यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, आपका वेज रेट 50 रुपीज़ पर आवर डिसाइडेड है कि हर वेज अर्नर को हम एक आवर के हिसाब से पेमेंट कितनी करेंगे 50. वर्किंग आवर्स कितने हैं 8 घंटे उसने काम किया तो उसकी नॉर्मल वेज कितनी बन गई है 50 मल्टीप्लाई बाई 8. तो आपकी 400 रुपीज़ उसकी ग्रॉस पे बन रही है. उसमें उसने कोई शिफ्ट अलाउंस भी अर्न किया 100 रुपीज़ का, तो उसकी टोटल पे कितनी बन गई है 400 + 100 इज इक्वल टू 500. तो उसने अपने जो उसने वेज अर्न की थी उसमें आपने शिफ्ट अलाउंस को या कमीशन को या ओवर टाइम पेमेंट्स जो भी किसी भी केस में हो उन सबको ऐड ऑन करके आप उनकी टोटल ग्रॉस पे निकाल लेते हैं. What is overtime pay? Overtime, it means कि if you are calling a worker to work extra than the normal hours, the normal specified hours से ज़्यादा आप उसे काम करवाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक शिफ्ट डिस्कस की कि सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक एक शिफ्ट होती है. तो अगर आप उस वर्कर आपके पास जो अवेलेबल हैं, समटाइम्स इसको हम बदली वर्कर्स भी कहते हैं, टेम्पररी वर्कर्स भी कहते हैं. आपको आपका ऑर्डर ज़्यादा है और आपके पास जो नेक्स्ट शिफ्ट में जो लेबर आ रही है वो उतनी ट्रेन नहीं है, या वो वाला काम उस मशीन को ऑपरेट करने वाली लेबर आज नहीं आई, तो आप उसी से रिक्वेस्ट करें कि आप और मज़ीद काम करें. तो वो जो एक्स्ट्रा आवर्स वो काम करेगा दैट इज़ ओवर टाइम में आएगा. और ओवर टाइम का रेट डेफिनेटली मैंने आपको बताया थोड़ा सा ज़्यादा होता है. ये एक छोटी सी एग्जांपल है. इसमें वर्किंग आवर्स गिवन है 8 आवर्स, वेज रेट कितना गिवन है 50 रुपीज़ पर आवर. तो आपने उसकी नॉर्मल वेज कैलकुलेट कर ली कि 50 आवर्स उसका रेट था, उसने 8 घंटे काम किया तो उसकी टोटल बन गई 400. उसकी आपकी वेज बन गई या उसका जो वेजेस एक्सपेंस बन गए इस पीरियड के. अब उसने लेट्स से कि उसने 2 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया है. 2 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया तो आप देखें कि ओवर टाइम पेमेंट का रेट डिफरेंट है, राइट. नॉर्मल वेज रेट कितना है 50 रुपीज़ पर आवर और आपका ओवर टाइम का वेज रेट है 60 रुपीज़ पर आवर. तो ओवर टाइम पेमेंट कैलकुलेट कर लें 60 मल्टीप्लाई बाई 2 आवर्स 120 रुपीज़ उसको मिलेंगे ओवर टाइम पेमेंट के. तो 400 नॉर्मल प्लस ओवर टाइम पेमेंट, टोटल पेमेंट उसकी कितनी हो जाएगी 520 हो जाएगी. उसकी ओवर टाइम पेमेंट टोटल पेमेंट्स हो जाएंगी. ये डायरेक्ट लेबर की पेमेंट मैंने आपको भी बताया कि टाइम बेसिस पे भी हो सकती है और पीस रेट बेसिस पे भी. अभी जितनी हमने एग्जांपल्स डिस्कस की वो ज़्यादातर टाइम रेट्स की थी. पीस रेट अभी मैंने आप लोग के साथ स्टार्ट में डिस्कस किया था कि पर पीस आप रेट डिसाइड करते हैं और जितने यूनिट्स जितने पीसेस एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है और पर पीस के साथ रेट जो होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करके आप उसको ग्रॉस पे उसकी डिटर्मन कर लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सर्टेन एग्जांपल्स, sorry, certain definitions. These are the cost centers. Cost centers are basically the area of a business of which cost can be identified. For which cost can be identified. All those centers for which cost can be identified are known as cost centers. Basically, there are two terms that are usually used, that is cost allocation and cost apportionment. What is the difference between the two? Cost allocation, basically cost that can be identified with a specific cost center is termed as cost allocation. And in case if
a cost exists that cannot be easily or conveniently identified with a specific cost unit or a specific cost center, then and we know that it is being shared by many departments, तो वहाँ पर उस केस में हमें उसकी अपॉर्शनमेंट करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल, मेरी सैलरी जो है, मेरी सैलरी इस्लामिया यूनिवर्सिटी आराम से डिटर्मिन कर सकती है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस को एलोकेट की जा रही है. इट मीन्स मेरा जो सैलरी का एक्सपेंस है वो आएगा एलोकेशन के एग्जांपल में आएगा, क्योंकि आपको आसानी से आप डिटर्मिन कर सकते हैं. यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि ये किस कॉस्ट सेंटर को जा रही है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस से इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज को जा रही है. लेकिन अगर मैं अपॉर्चुनिटी की एग्जांपल दूँ, तो जैसे आपके इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो अमाम मस्जिद हैं, अमाम मस्जिद हैं, या जो आपके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा आपकी जो यूनिवर्सिटी के अंदर बसेस मूव कर रही हैं, ये सारी कॉस्ट कैसी है? ये कॉस्ट तो है, लेकिन आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये किस कॉस्ट सेंटर के लिए, क्योंकि आपको पता है ये जनरल कॉस्ट है. सब स्टूडेंट्स इसके बेनिफिशरीज हैं, सब डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स इसके बेनिफिशरीज हैं. तो ऐसी कॉस्ट जो शेयर की जा रही है बिटवीन टू और मोर सेंटर्स, वहाँ पर आपको अपॉर्शनमेंट करनी पड़ेगी. नाउ स्टेप्स फॉर द एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट वो हम डिस्कस कर लेते हैं. सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट. लाइक जितने भी हम सबको लिस्ट डाउन कर लें, एंड देन आइडेंटिफाई द कॉस्ट सेंटर्स लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स, सर्विस कॉस्ट सेंटर्स, जनरल कॉस्ट सेंटर्स, and then start allocating an apportionment. First of all, we allocate the general FOH cost to the all the production centers and the service centers. Then we apportion factory overhead costs at service cost centers to the production cost centers. And then for each production cost center, we will calculate the total factory overhead cost. And then we will determine the factory overhead rate, the absorption rate for each production cost center. ये जो last two steps हैं, ये हम already करते हुए आ रहे हैं. तो हम लोगों ने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में भी ऐसे किया था कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कंप्यूट किया था just by using the very same formula, that estimated factory overhead cost divided by the estimated activity level, or whatever the base is being used in that production center, right? Now there are different bases that are used for overhead absorption rate, for calculating the overhead absorption rate. These are machine hours. In case if a factory, एक ऐसी फैक्ट्री है जिसके अंदर वो ज़्यादातर मशीन आवर्स, उसकी बहुत मशीन की जो कॉस्ट है, या वो बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट कम है, और वो ज़्यादा कैपिटल टाइप की फॉर्म है कि इसमें रोबोट्स या कोई बहुत ज़्यादा मशीन्स यूज़ हो रही हैं, तो वहाँ पर आप मशीन आवर्स को एज बेस यूज़ कर सकते हैं. वो तमाम इंस्टीट्यूशंस, वो तमाम फैक्ट्री सेटिंग्स जहाँ पर, या प्रोडक्शन हाउसेस जहाँ पर लेबर कॉस्ट मेजर एलिमेंट है प्रोडक्ट का, वहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर्स, प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एज बेस यूज़ हो सकती हैं. सिमिलरली नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट, ऐसी फर्म्स जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वहाँ पर आप लोग नंबर ऑफ यूनिट्स आउटपुट को भी एज बेस यूज़ कर सकते हैं. Okay, next we have effective overhead variance. बेसिकली वेरिएंस भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की हुई है कि ओवर अप्लाइड वेरिएंस भी हो सकती है, आपकी अंडर अप्लाइड भी हो सकती हैं. लेट्स स्टडी द रीजंस ऑफ वेरिएंस. Variance, as I told you, that variance is basically the difference between the standard and the actual outcomes. But the reason of variance are two. Like, let's study once. Now, friends, the difference between the actual quantity sold or consumed and the budgeted amount expected to be sold or consumed multiplied by the standard price per unit is known as the capital variance. Now this is, sorry, capacity variance और वॉल्यूम वेरिएंस इसको हम लोग कह रहे होते हैं. बेसिकली डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स? कैपेसिटी लेवल ओवर विच ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज कैलकुलेटेड एंड कैपेसिटी लेवल अटेन्ड. सिमिलरली फ्रेंड्स, हमारे पास एक वेरिएंस होती है जिसमें हम डिफरेंस देखते हैं कि एफ की क्या बजट में कितना था, कि बजट में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऊपर कितना खर्चा होगा, और एक्चुअली आपने एफ कितनी कॉस्ट इनकर की है. फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने साल के स्टार्ट में प्लान किया था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स पे 5 लाख खर्चा होगा इस अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो आपकी बजटेड एफ कॉस्ट थी, आपकी स्टैंडर्ड एफ कॉस्ट थी, और एक्चुअली आपने उस पर कितना खर्चा कर दिया. लेट्स से अगर आप 6 लाख रुपये एक्चुअल एफ इनकर हो गया है, तो ये आप लोगों की वेरिएंस है.
जो कि डेफिनेटली अनफेवरेबल वेरिएंस है। लेकिन अगर आपने बजट से कम खर्चे में मैनेज कर लिया है तो डेफिनेटली वो आपकी फेवरेबल वेरिएंस है। नाउ स्टूडेंट्स, जो ये बेसिकली आपको इसके नाम नज़र आ रहे होंगे, जो कैपेसिटी वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस होती है दैट अराइजेस ड्यू टू द वेरी फर्स्ट रीजन दैट इज डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड, एंड द बजट वेरिएंस एंड द स्पेंडिंग वेरिएंस इज द सेकंड, अराइजेस ड्यू टू द सेकंड रीजन कि आपने कितना खर्च ज़्यादा किया या खर्च कम किया इफेक्टिव ओवरहेड्स के बाद में।